Ladies and gentlemen, today we have two aficionados of the arts chatting about Awadh and its influence on cinema and music. Awadh and Lucknow in particular is familiar territory for both of them. On the one hand is Mr. Muzaffar Ali, whose truthful portrayal of Awadh in cinema and the arts is unparalleled. And on the other, Mr. Atul Tiwari, a reluctant thespian who often says, and I quote, "Acting is something I have not discovered until my younger days in Lucknow, when I was doing plays with the legendary Raj Bisaria sir." So, may I invite you to on stage? So, with the decline of the Mughals, Awadh emerged as North India's cultural epicenter. In other words, जब दिल्ली उजड़ी, Lucknow बनी. The Nawabs of Lucknow lavished patronage on music and dance, and the distinctive gharana, Lucknow gharana of Kathak, Thumri, Dadra, Khayal, the Lucknow style of ghazal, etc. emerged. Tabla, yes, tabla also, Lucknow tabla. Art, imbued with a sharp sense of secularism, flourished under the patronage of Wajid Ali Shah. Music, dance, painting, and theatre are all keys that unlock profound human understanding and accomplishment. Bombay cinema became the extension of a well-developed indigenous theatre culture bankrolled by Parsi and Gujarati entrepreneurs. The birth cry of the talkie Alamara, the first Hindustani film, was a result of these stage entrepreneurs being drawn to the Urdu language. Besides this, Urdu poetry's oral, performative tradition and the use of rhyming speech in the Dastan-Goi and Qissa-Goi traditions made it an attractive language for the stage. The Urdu performing art culture, together with the popularity of films inspired by Persian literary traditions, that is the stories of Shirin Farhad, Laila Majnu, etc., with many of them produced in the Persian Masnavi style long narrative poems, proved immensely popular with Indian audiences. The rise of elegant ghazals in Hindi cinema dominated film music, as did Qawwali. More than providing a medium and vocabulary to Hindi cinema, Awadh bequeathed to Indian audiences an instinctual association with the good life, the model of a man about town, the stereotype of cultivated leisure, and the ingredients for all-time aristocratic but decadence. Awadhi society in the 19th century and early 20th century was under the hold and influence of the courtesan culture. Lucknow was the home of tawaifs or courtesans. The courtesans' skills and training as performing artists led some of them to enter India's fledgling film industry when Indian cinema took birth in the year 1913. There has been a long list of courtesans turned actresses, including names like Jaganbai, the mother of actress Nargis. So, Urdu, Awadh, and the Tawaif have been instrumental in shaping Hindi cinema as a whole. With this brief prelude, my dear guests, I hand over the stage to the stalwarts of Awadhi influence on Hindi cinema, Mr. Muzaffar Ali and Mr. Atul Tiwari. Thank you, Binaji, and no thank you. Thank you for such a wonderful introduction to the subject. And no thank you because आपने इतना अच्छा बोल दिया है एक कैप्सूल में कि अब हम लोगों के पास ज़्यादा अवध के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करने को कुछ रह नहीं गया है। आपने एक कैप्सूल में सारी बातें बता दी, इससे हमारी ज़िंदगी आसान भी हो गई। अभी नीचे मजाक में बात हो रही थी तो मैंने सुना, मुझे अस्करी साहब ने आके बताया कि मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि देखिए मैं आज का
हलाल का बकरा हूँ, तो मुझे ज़िबह करने वाले वो चले आ रहे हैं तुम तिवारी साहब। मैं यहाँ इतना कहना चाहता था कि यहाँ मैं सिर्फ ज़िबह करने नहीं आया हूँ, मैं ज़िबह होने भी आया हूँ, मैं भी यहाँ रोस्ट होने के लिए आया हूँ। तो मैं भी मुझसे भी आप उतने ही सवाल पूछ सकते हैं जितने कि मैं मुज़फ़्फ़र साहब से पूछने जा रहा हूँ। और मुज़फ़्फ़र साहब, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको एक छोटी सी, शायद आपने ना देखी हो, एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा अवध का गाना, अवध की ढोलक, अवध की शहनाई, अवध के जेवरात, अवध के कनफूल, अवध का बेंदा, अवध की बाजेब, अवध की चूड़ियाँ और अवध के फेसेस जो थे। आपने खास करके जो सीमा सत्यू जो दुल्हन बनी थी, जो आज बहुत बड़ी पेंटर है, MS सत्यू की और शमा ज़ैदी की बिटिया, उनके अलावा जो आपने और फेसेस पीछे देखे वो सब गांव के लोग थे। वो कोई ऐसे नहीं थे कि जो मुंबई में जो एक्स्ट्रा सर्कल में मिलते हैं कि हाँ वो दे दो वो दे दो वो दे दो, जहाँ पे हम लोग बकरों की तरह एक्स्ट्रास को चुनने जाते हैं। थोड़ा सा सिस्टम बदल गया, पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो सब कुछ अवध का था। जैसा बीना जी ने कहा कि अवध की जैसी अक्कासी मुज़फ़्फ़र साहब ने की है, वैसी अक्कासी दूसरी नहीं मिलती है हिंदुस्तान में। कुछ क्रॉनिकलर्स रहे हैं हिंदुस्तान में, बहुत ही कम, जिनमें से मैं एक सईद अख्तर मिर्ज़ा का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हर फिल्म अपनी बम्बई के लोगों के बारे में बनाई। अपनी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक उनकी हर फिल्म जो है वो बॉम्बे की ज़िंदगी के बारे में। वो कभी कश्मीर नहीं पहुँच गए हैं चोपरास की तरह, और कभी वो मद्रास नहीं पहुँच गए हैं, या कभी मणिरत्नम की तरह हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में नहीं पहुँच गए। वो एक इलाके को डेडिकेटेड रहे हैं। वैसे ही अवध को डेडिकेटेड रहे हैं हमारे राजा मुज़फ़्फ़र अली साहब। वो चाहे इनकी पहली फिल्म गमन हो, या आगमन हो, या उमराव जान आइकॉनिक हो, या इनकी बाद की दूसरी फिल्में हो, सब में आपको अवध दिखता है। भले वो अवध मुंबई में रह रहा हो, लेकिन है वो अवध गमन में। वो परेशान सा शख्स मुंबई में अवध का है। तो मुज़फ़्फ़र साहब, पहली बात तो ये कि आप तो अवध से शुरुआत आपने ज़रूर की, अवध से और अवध के सेंटर से, बिल्कुल कैसरबाग से, जहाँ अवध अपने उरूज पे पहुँचा और जहाँ अवध को उजाड़ा गया, उस सेंटर में बिल्कुल आप रहते रहे हैं, गुरुद्वारा हाउस में। लेकिन आपने दुनिया देखी थी, आप मुंबई में रहते थे, आप एयर इंडिया में काम करते थे, आपने दुनिया देखी थी। तो वो क्या था कि जो आपको वापस खींच के अवध की तरफ ले आता था? Atul, it's lovely to be in conversation with you. A person with such rare intellect, insight into our world, into our society, one hardly finds. So to talk to you and to be interrogated by you is a great pleasure, honor. दरअसल हर आदमी का एक सफ़र है, जो मैंने अपनी किताब ज़िक्र में बयान करने की कोशिश की है। इसकी अपनी मंजिलें हैं, मकाम हैं, और
एक तो जाहिर है जो आदमी की इब्तिदाई खुशबू होती है, जो इब्तिदाई उसका असर होता है, वो तो कभी जाता नहीं है, चाहे वो जहाँ चला जाए। तो इत्तेफाक से जो हमारा हम पे जो इब्तिदाई माशरे का असर है वो इतना गहरा था कि वो हर चीज़ में कायम रहा और उसने हमारी तो मैं ये कह रहा था कि उसमें यहाँ से मैं जब निकला तो अलीगढ़ पहुँचा और अलीगढ़ में मेरी एक नई दुनिया खुली। हाँ, पढ़ने तो मैं साइंस गया था, लेकिन वहाँ जाके मैंने एक शायरी की दुनिया देखी और वो शायरी की दुनिया जो थी वो एक तरीके से इट वाज अ वर्ल्ड ऑलमोस्ट सिटिंग ऑन द फेंस, यू नो। अक्सर वहाँ से लोग ग्रेजुएट करके मुंबई पहुँच जाते थे और जो एक पूरा वहाँ का एक फिल्म का पस मंज़र था उसको इनरिच करते थे अपने हिसाब से। कुछ लोग नहीं जा पाते थे, कुछ लोग जाके भी मिसफिट रहे, जैसे शहरियार। तो एक अलीगढ़ का एक ये खुशबू और लखनऊ का एक असर लेके मैं जो कलकत्ते पहुंचा तो वहाँ मैंने सत्यजीत रे से मुलाकात हुई। वो एक ही कंपनी में हम लोग काम करते थे और मैं उनको बहुत गौर से देखता था और ये सोचता रहता था कि ये जिस तरीके से बंगाल के कल्चर को पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, क्या हम जिस चीज़ के हम बने हैं उसको हम नहीं बयान कर सकते हैं लोगों के सामने। ये एक सवाल जो था वो दिन ब दिन एक तरीके से बढ़ता गया, गहरा होता गया और जब तक मैं वहाँ से निकला तो सवाल जो था वो काफ़ी पक चुका था और फिर जब बम्बई गया तो उसके जवाब भी मिले। तो बहरहाल दिस इज़ द प्रिसाइज आंसर टू द क्वेश्चन एंड देन वी कैन टॉक फर्दर। थैंक यू सर। मुज़फ़्फ़र साहब, एक बात जो है जो जैसे हम अवध की बात करते हैं तो अक्सर हम एक इस्लामिकेट सी तस्वीर हमारे सामने, इस्लामी नहीं कह रहा हूँ, इस्लामिकेट कह रहा हूँ, जानबूझ के एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक वैसी तस्वीर उभरने लगती है अवध का नाम लेते कि जहाँ सिर्फ रक़्स और मौसीकी की बात होती है, होनी चाहिए सनअत ज़रूर, लेकिन जहाँ सिर्फ उसकी बात होती है या सिर्फ गलावटी का और पराठों की बात होती है, जैसे कि आज हम सब ने एंजॉय किए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवध बड़ी एक रबर बैंड की तरह से चीज़ रहा है जो घटती बढ़ती रही है। अवध बनारस तक भी जाता है और अवधि की सबसे बड़ी जो दुनिया की किताब है रामचरितमानस वो बनारस में लिखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि राही मासूम रज़ा साहब भले जौनपुर के रहने वाले हों, लेकिन उनका आधा गांव जो है वो तो राही मासूम रज़ा साहब, उनका आधा गांव जो है वो तो अवध में ही बसा हुआ है। वो ईस्टर्न यूपी में नहीं बसा हुआ और इसी तरह अवध की सीमाएं इधर भी जो है नेपाल तक चली जाती है, रोहिलखंड से। मैंने कहा रबर बैंड की तरह कभी घटता बढ़ता अवध रहा है और उसकी आइडेंटिटी सिर्फ इस्लामिकेट नहीं रही है। जो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फिल्मों में जिस तरह से न सिर्फ वही एक क्लास दिखाई देता है जो एक ज़माने में जो सारी फिल्में जो अवध में बहुत सारी बनी थी और पालकी और ये और वो फलाना ढमकाना जो बना करती थी, ज़माने में राजेंद्र कुमार के ज़माने में जो फिल्में बनती थी वही नहीं, बल्कि आम लोग आपकी पहली फिल्म से गबन से दिखाई देते हैं। आगमन में गन्ना किसानों की बात दिखाई देती है, अंजुमन में हमें एक अलग क्लास की औरतें दिखाई देती हैं जो चिकनकारी में जो मसरूफ़ हैं। तो ये आपका अवध का तस्वुर जो एक गंगा जमनी तहजीब वाला, ये कहाँ से पैदा हुआ? मैं मतलब इसका श्रेय, इसका इंस्पिरेशन अपने वालिदैन को देता हूँ और अपने वालिद की जो हमारे वालिद की जो मानवतावादी सोच रही है ह्यूमनिज्म की, उस सोच के साथ जब आप अवध को देखें तो एक नया अवध दिखाई देता है। फिर हमारी वालदा का भी एक जुड़ाव रहा है यहाँ का जो फेमिनिन फ्यूडल कल्चर का से, और फेमिनिन फ्यूडल कल्चर देखिए एक तरीके एक तरफ तो आई वॉज बीइंग डी-फ्यूडलाइज्ड बाय माय फादर एंड ऑन द अदर हैंड आई वॉज बीइंग फ्यूडलाइज्ड
by the feminine culture of Awadh, which has its own dynamics. तो एक तरफ से हमको मौसीकी मिल रही थी, सोज मिल रहे थे, मरसिए मिल रहे थे, नोहे मिल रहे थे, दूसरी तरफ से एक इनकलाबी सोच जो मेरे वालिद के ज़रिए से मिल रही थी, जिससे हमको जिसकी पहचान हमें फैज़ में मिलती है, हसरत मोहानी में मिलती है। इस तरीके के जो एक तरक्की पसंद एक दर्शन रहा है इस सरजमीन का, वो हमें नज़र आया। तो ये दोनों चीज़ें जब साथ मिलके चलती हैं और फिर उसके साथ जब यहाँ के लोगों का, यहाँ के माशरे के टूटने का दर्द सामने आता है, तो फिर किरदार पैदा होते हैं। क्योंकि हर किरदार जो है वो एक माशरे के तबके के एक शख्स की नुमाइंदगी करता है। तो उस नुमाइंदगी को पहचानना, उस नुमाइंदगी को शब्दों में ढालना, उस नुमाइंदगी को जिस्म देना, अक्स देना, आवाज़ देना, ये एक फ़न की शक्ल में एक सिनेमा के ज़रिए से मुझ तक पहुँचा। और ये चीज़ जो थी, ये मैं जब बॉम्बे गया तो इत्तेफाक से मैं बॉम्बे में बिल्कुल एक, हालांकि रहता जुहू में था लेकिन काम एयर इंडिया में करता था, तो आई वॉज नॉट फेसिंग द ब्रंट ऑफ बीइंग अ स्ट्रगलर, जो बहुत ही ख़तरनाक और डरावनी कैफियत है। तो देन यू गेट सक्ड इनटू दैट मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, फिर आदमी सांस नहीं ले पाता है। फिर वो ही इज़ फियर्सली कम्पिटिटिव एंड फियर्सली इनसिक्योर। तो मैं उस चीज़ से बच के, जिसका अगेन आई गिव माई कल्चर द क्रेडिट, कि वहाँ उसकी वजह से मुझे एक ताकत मिली, और जो मैंने इंतखाब किया काम करने के सब्जेक्ट्स का, वो मुझे वहाँ से मिला। ज़्यादा बोल गया? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत बोला आपने, अपने वालिदैन को आपने क्रेडिट दिया इस पूरी जो तहजीब आप में आई। और बल्कि मुझे तो शरर साहब की किताब के शुरुआती पन्ने गुज़िश्ता लखनऊ के याद आते हैं, जहाँ शरर साहब लखनऊ की जेनेसिस का जिक्र करते हुए कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं कि राजा रामचंद्र के हम सफ़र भाई और हमदर्द भाई, हमदर्द नहीं थे, हम सफ़र भाई, ये बाकी हमदर्द तो भारत भी थे तो, लेकिन उनके हमदर्द और हम सफ़र भाई लक्ष्मण जी को राजा रामचंद्र ने जो ज़मीन अता की थी, उसी पे उन्होंने लखनपुरी बसाई। तो इन राजा रामचंद्र जी से भी तो आपकी रिश्तेदारी है एक तरह से, मैंने सुना है, उसके बारे में ज़रा कुछ लाइट डालें आप। देखिए, हमारे वालिद जो हैं वो थे, अब मैं उनको हैं कह रहा हूँ क्योंकि वो शायद अभी तक मेरे लिए ज़िंदा है। तो उन्होंने अपनी जो उनकी जो एक राजपूत लीनियज है जिसने आके कुटवारा बसाया, उस पर PhD किया। तो वो बहुत कम लोगों का दिमाग जाता है कि जिस ज़मीन पे वो खड़े हैं और जिस ज़मीन से उनको एक विरसा मिल रहा है, उसको सेलिब्रेट करना, उसको पहचानना। तो he did his PhD in the Chawdas of Gujarat, and the Chawdas are supposed to hail from direct descendant from Lord Ram। तो वो उसको बहुत अहमियत देते थे, जिसे कहना चाहिए he was I mean a great I mean what should I say, a great adorer of Ram, and he felt I mean एक इसे कहते हैं जिसे एक आपका कॉलिंग कार्ड ऑफ द सॉइल, दैट ही फेल्ट वाज राम फॉर हिम, यू नो। एंड एट दैट टाइम देयर वाज कोई मंदिर मस्जिद की कोई बात भी नहीं थी, और इस तरीके कोई इख्तिलाफ न थे, न झगड़े थे, लेकिन एक शख्स का सिर्फ एक खिराज अकीदत था कि जिस से उसका सिलसिला जुड़ रहा है, उसको एक एहतराम देना, इज्जत देना। तो दैट इज़ व्हाट इनफैक्ट तो ये इसमें किताब में मैंने लिखा है
how he migrated from Gujarat, went to Ayodhya, came to the forests of Khiri Lakhimpur, and there Vishnu Bhagwan came to him in his dream, Raja Sopi को, और फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तुम लेटे हो, ये विश्राम कर रहे हो, ये ही तुम्हारी गद्दी है, यहाँ जब जागोगे तो एक भैंसों का झुंड मिलेगा, उसमें एक भूरा भैंसा है, उसको तुम उसकी बलि चढ़ाओ, जहाँ उसका सर गिरेगा वो तुम्हारी गद्दी थी। तो विष्णु भगवान गाइडेड हिम टू दैट पॉइंट। तो वो जो उन्होंने अपना क्रेस्ट था उसमें वही सेमल का पेड़ और वो क्या कहते हैं भैंसे का सर और ये सब चीज़ें हैं मौजूद। सो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ योर हेरिटेज। हालांकि द गुरुद्वारा पीपल आर सैयद्स, दे आर मिक्स्ड हियर एंड देयर, बट जो हमारी गद्दी थी वो उस सिलसिले से जुड़ी थी, एंड he honored that till his dying day. देखिए दोस्तों, मुझे हमेशा लगता था कि इनकी गद्दी और मोदी जी की गद्दी एक ही सिलसिले से जुड़ी है, गुजरात से। मैंने अभी तक जिक्र पढ़ी नहीं है, और जिक्र लफ्ज़ इस समय मतलब पता नहीं क्यों बड़ा सर्कुलेशन में है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद ने भी एक जिक्र नाम की एक किताब निकाली है इस्लाम के बारे में, बहुत खूबसूरत किताब, और उसको पढ़ने का तरीका भी बड़ा अलग है, क्योंकि इस लाइक पजल, आप जोड़ते जाइए, किताब पढ़ते जाइए। कल यहाँ जिक्र उस परिवेश का दिखाई गई थी शायद इसी हॉल में, और आज फिर एक और जिक्र यहाँ मौजूद है। तो मैंने पढ़ी नहीं किताब, लेकिन मुझे मेरे दोस्त अमित मिश्रा जी भी बता रहे थे कुछ बहुत अच्छे किस्से आपने राजाओं के बारे में यहाँ के लिखे हैं, रजवाड़ों के बारे में लिखे हैं, और उसमें भी ये चीज़ बार बार निकल के आती रहती है कि कैसे अवध के राजा भी अपनी प्रजा से प्रभावित होकर और उनके भी धर्म को सम्मान, मुसलमान हो तो हिंदुओं को सम्मान देगा, हिंदू हो तो मुसलमानों को सम्मान देगा। तो एक आध किस्सा आपकी किताब में से। यहाँ के जो ताल्लुकदार हैं वो मतलब बहुत से ह्यूज वैरायटी। तो हमारे सबसे करीब दोस्त सलेमपुर के तकी हसन, ही एंड आई आर लाइक ब्रदर्स। मैंने जितना काम हम लोगों ने मिल के किया है, शायद कि कम लोगों के साथ हमने मिल के किया हो। और तो यहाँ के ताल्लुकदार अपना एक अजीब सा रंग और कल्चर रखते हैं, और हमारे वालिद जब विलायत से आए तो ज़ाहिर ही वाज ड्रॉन बैक टू हिज रूट्स एंड ही हैड टू कम बैक एंड टेक चार्ज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। लेकिन जब वो आए तो अपने दादा और वालिद के दोस्तों से मिले जो ताल्लुकदार थे, और ज़ाहिर है वो बहुत से उसमें ज़्यादातर मुसलमान नहीं थे। तो एक राजा साहब पास गए वो, और इत्तेफाक से वो राजा साहब देहाती में बात करते थे और ज़नानी ज़बान में, मैं गई रहूँ, आई रहूँ, रुठाई गई। तो उन्होंने देखा राजा साहब ज़मीन पे लेटे हुए हैं, तो अब बच्चा ने पूछा, चचा आप ज़मीन पर काहे लेटे हो? तो उन्होंने बहुत घूर के देखा उनको, कहने तुम जानत नहीं? अब जी कहने मुहर्रम है। तो हमने कहा, बच्चा ने कहा मुहर्रम से आपका चचा क्या लेना देना? कहने तुम मूर्ख, राजा कोई धर्म होता है, जिसकी प्रजा का धर्म उसका। क्या बात, क्या बात। विश्व मुजफ्फर साहब के जिन दूसरे रिश्तेदारों का मैंने जिक्र किया वो भी इसको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मुजफ्फर साहब थोड़ा सा वाइडनिंग करते हैं, और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अवध एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सिनेमा एंड म्यूजिक, तो ये आपको क्या लगता है कि हमारे सिनेमा पे अवध की छाप कब से दिखाई देती है और कहाँ से शुरू होता है ये सिलसिला? दरअसल अब जब हम घूम घाम के आते हैं तो फिर आदमी को एक यहाँ ख़जाना मिलता है, और वो ख़जाना बहुत हद तक वाजिद अली शाह की विरासत है, और जो उन्होंने काम किया है हम लोग उसकी मतलब वी हैव नॉट बीन एबल टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ व्हाट दैट मैन हैज डन। उन्होंने जो
अवध की मौसीकी पे और अवध के नृत्य पे जो लिखा है, जो और जिससे इंस्पायर होके पता नहीं कितने लोग तैयार हुए हैं, तो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैंने जब उमराव जान बनाई तो वो आई वाज रीलिंग अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट द म्यूजिक ऑफ अवध is all about. And the music of Awadh is really something that has to run in your bloodstream. If it's not in your bloodstream, you have to get some blood transfusion. Because without that, you cannot enter the realm of music. और उसके अंदर जो एक नशा है, जब आप उसके अंदर डूबिए तो फिर इतना खजाना उसके अंदर से मिलता है। उमराव जान को तो खैर आप जानते ही, लेकिन उसके अलावा मैंने एक जाने आलम एक सीरियल बनाया था वाजिद अली शाह पे, जिसमें 36 गाने थे और हर गाना अलग राग में था। उस्ताद फैयाज अहमद खान की म्यूज़िक थी और क्या उसमें उन्होंने और लिरिक्स नियाज हैदर बाबा के थे और वाजिद अली शाह के थे। सो इट वाज फॉर मी इट वाज अ वेरी एलिवेटिंग एक्सपीरियंस to enter into that realm, and I went into it with almost an empty pocket. हमारे पास सिर्फ एक स्टेज था और गाने थे और म्यूजिक थी और कॉस्ट्यूम्स थे, and I had no hardly any money, so I did the role myself of Wajid Ali Shah. And I just had this huge stage, and I used to just change the orientation of the stage, and it used to be another location. So what I learned in terms of stagecraft from that doing that serial, 13-part serial, was amazing. You know, I just hung doors and windows and changed things around with nothing, no walls. तो वो उससे मुझे सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? It was a trajectory of this magnificent king, and I am trying to present it through Inder Sabha. Inder Sabha भी उनके वक्त की एक बहुत ही अमानत शाह की लिखी हुई एक ओपेरा टाइप का था जी। हाँ जी, तो उसमें वो राजा इंदर वो खुद बनते थे और इट रियली गॉट इनटू दीज, ये 4 परियां जो थी उनके ज़रिए से मैंने वो पूरी कहानी सुनाई। उसमें लाल परी है, द परी ऑफ रेवोल्यूशन, ग्रीन परी को मैंने बनाया, द परी ऑफ डिसीट, फिर सब्ज परी, फिर नीलम परी और पुखराज परी। So and I tried to weave in a whole narrative through that. But for me it was a learning experience. It was getting into the psyche of this man who is going through hell. I think what he must be going through, हमें कोई भी वैसा उस पे वो बीती नहीं होगी. And probably it was that pain that was creating the culture, that was creating the pathos in his words, in his whole, in everything that he did around him. उस दर्द के जरिए से क्या बन के क्या निकल रहा था, जो फाइनली उसका क्लाइमैक्स हुआ था, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए ना। तो ये कोई मामूली दर्द की दास्तान नहीं है वाजिद अली शाह को समझना। मुझे लगता है कि we need to go through that whole experience and explain to the world what he was all about. He was not just an ustad or a guru, he was something more than that. He was a very evolved intellectual. So that was, I think, the opening of my kind of experience of Awadh. And I'm fortunate I took that route. क्योंकि बाज़ वक्त ये होता है कि पहला कदम आपका गलत उठता है, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। तो बहुत से लोग हैं जिनकी मंजिलें उन्हें ढूंढ रही क्योंकि उनके पता नहीं किस तरफ कदम उठ चुके हैं, and they'll never be able to get back. But fortunately, Awadh is an interesting garden of inspiration. I would say it's
truly a garden of inspiration. And we must need to understand Awadh in its very, very subtle shades. And I think for that, poetry is a very important thing. It's really the poetry that takes you into the whole pain and the ethos. When I was doing Umrao Jaan, it was this kind of orientation of poetry that made me get into the trajectory of that character. If there was no Awadh, if there was no Wajid Ali Shah, if there was no Lucknow, there would have been no Muzaffar Ali, there would have been no Shahryar, and no Umrao Jaan. तो ये जो चीज़ है, इसको जब तक आप उस दर्द को उस तरीके से ना देखें तो आप कुछ पेश नहीं कर पाते हैं। और जब ये चीज़ उस दर्द से गुजर के आती है तो एक तहलका मच जाता है। उमराव जान वाज नॉट समथिंग टू राइट ऑफ। कई लोगों ने उसको राइट ऑफ किया, लेकिन वो लोगों की जब ब्लड स्ट्रीम में चली गई तो फिर वो नहीं निकल पाई। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जी मुज़फ़्फ़र साहब, ताली बजा रही थी आपको। लेकिन अब जबकि ताली बज चुकी है तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे इस वाली मुज़फ़्फ़र साहब की बात से कि जब इन्होंने जाने आलम बनाया सीरीज़ वाजिद अली शाह की, तो उसमें इंदर सभा का इस्तेमाल किया और उसमें 32 गाने थे। क्योंकि जब हम अवध के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं इंडियन सिनेमा पे, तो मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को जो मेरी तरह जवान और मासूम है उसको ये याद दिलाना चाहूँगा कि साउंड सिनेमा के आने के बाद में सन 31 में हिंदुस्तान में बोलती तस्वीरें आती हैं आलम आरा के साथ में, और सन 32 में एक फिल्म आती है जिसका नाम है इंदर सभा। वही इंदर सभा जिसका जिक्र अभी मुज़फ़्फ़र साहब ने किया, जिसमें 4 परियों का जिक्र किया, जिसमें खुद यहीं बगल की बारादरी जो सफ़ेद बारादरी है जहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है मेला, यहीं पे ही इंदर सभा होती थी। और उसी इंदर सभा में खुद वाजिद अली शाह साहब इंदर का रोल करते थे और उसमें उनके परी खाने से औरतें आती थी जो बाकी परियों के रोल करती थी, बाकी सारे रोल्स करते थे लोग। और उस इंदर सभा को लिखने वाले जो थे सैयद आगा मिर्ज़ा हसन अली अमानत लखनवी, ये उनका पूरा नाम था। तो ये अमानत लखनवी साहब की इंदर सभा जब उन्होंने लिखी थी तो उसमें 66 गाने थे, 66 सॉन्ग्स। और 66 सॉन्ग्स में से 33 तो गज़लें थी, 9 ठुमरियाँ थी, 4 होरी थी, 2 चौबले थे, 5 छंद थे, 15 गीत थे। तो इस तरह से 66 गाने थे। लेकिन जब बोलती तस्वीरें आई तो उनको इससे अच्छा मटेरियल मिल नहीं सकता था जो अवध में मौजूद था, तैयार था और हिट हो चुका था। तो उस पर फिल्म बनाई गई और उस पर जो फिल्म बनी उसमें 71 गाने थे। अमानत साहब को मरे हुए 50-60 साल हो चुके थे, लेकिन उसमें और गाने लिखे गए सन 32 की इस फिल्म में इंदर सभा में, और उसमें 71 गाने थे 66 के बजाय। मतलब 5 गाने और उसमें लिखवाए गए। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात थी कि जो उसमें मेन परी का जो रोल किया और जो दूसरा रोल किया वो थे मास्टर निसार, जो कि खैर दिल्ली के पैदा थे, भोपाल में पढ़े थे, कलकत्ता पहुंच गए थे। लेकिन उसमें एक लखनऊ में पैदा लड़की थी जिसका नाम था मिस कज्जन, कज्जन जहां नारा। मिस कज्जन जहां नारा या कज्जन जो थी, जो कि गाती थी, ये सब सिंगिंग स्टार्स थे उन दिनों, क्योंकि कोई प्लेबैक नहीं। तो कज्जन की पैदाइश लखनऊ की है क्योंकि कज्जन की माँ फुग्गन लखनऊ में ही तवायफ थी। तो वो फुग्गन की शादी होकर कहीं चली गई थी, लेकिन अपने पहलौठी के लिए या पहलौठी जो भी वर्ड है, आप में से कोई औरत मुझे करेक्ट करेगी, तो पहला बच्चा होता है, क्या कहते हैं, तो पहलौठी के लिए वो लखनऊ ही आई थी। तो फुग्गन जो थी उनकी बेटी कज्जन ही पैदा हुई थी, जो कि उसकी हीरोइन थी। और कज्जन ने तो बाद में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी की। कज्जन उसमें भी थी जो पहली बोलती फिल्म थी, आलम आरा में भी थी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर साहब भी थे और निसार तो फिर उसके हीरो थे। निसार वो हीरो थे पहले हिंदुस्तानी फिल्मों के जिनके पास में रोल्स रॉयस हुआ करती थी। तो ये सब ये कनेक्शन लखनऊ से था, कम से कम फुग्गन का और कज्जन का कनेक्शन तो कतई लखनऊ से था ही इन्फ्लुएंस में। अगर आप अलाउ करें सर, तो मैं एक बात यहाँ और ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर जब ये बात होती है कि अवध का इन्फ्लुएंस सिनेमा पे कब से और क्यों और कैसे शुरू होता है,
तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस रोज से हिंदुस्तानी सिनेमा शुरू होता है, मैं बात कर रहा हूँ 1913 की, उस रोज से अवध फिल्म में मौजूद है। अगर सर आप इजाज़त दें और ऑडियंस देखना चाहे तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप उस पहली हिंदुस्तानी फिल्म की दिखाना चाहूँगा जो अवध से ही शुरू होती है। कैन वी हैव द फर्स्ट क्लिप ऑफ राजा हरिश्चंद्र? पहली वेरी फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म तो अवध के बारे में बनती है, तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में बनती है, जो अयोध्या के राजा थे रामचंद्र जी से बहुत वो सच में और आपने बड़ी मजेदार चीजें देखी होंगी इस पहली पिक्चर में कि जब आवाजें आती हैं, ये म्यूजिक जो है ये तो बाद में किसी ने जोड़ी है उसमें, लेकिन उन दिनों भी म्यूजिक कभी कभी लाइव बजाई जाती थी। और ये आपने देखा कि आवाज आती है तो ऐसे करके सुनते हैं क्योंकि साइलेंट सिनेमा है, तो कैसे ये राजा सुनाई दे रहा है राजा को। ये आपने जो लोग सिनेमा से प्यार करते हैं उन्होंने देखा होगा कि बड़ा मुश्किल था उन दिनों आउटडोर में कैमरे को घुमाना, कैमरा घूम रहा है क्योंकि इतने भारी होते थे कैमरा, फिर भी इंटरेस्टिंगली शॉट। और जिनको ये एहसास हो रहा हो कि अवध में ऐसे पत्थर कहाँ से आ गए जो कि उससे लावा से बने हुए पत्थर होते हैं, ज्वालामुखी के, तो इसलिए कि महाराष्ट्र में शूट नहीं, क्योंकि उन दिनों सब्सिडी नहीं देती थी उनकी बात, तो इसलिए यूपी में शूट नहीं देखी। आज तक यूपी में बहुत शूटिंग्स होती है इसलिए। यूपी की अगर बात करें सर तो एक और चीज़ जो है, क्योंकि 1857 की ज़माना और 1857 की जंग जिस तरह से यूपी में लड़ी गई और जितनी जगह यूपी में लड़ी गई, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो रोहलगढ़ की तो जगह है, उस तरह से यूपी इधर कहीं लड़ी है। तो शायद इसीलिए जो भी डेफिनेटिव फिल्में बनी हैं, तो चाहे सतीश रे साहब की शतरंज के खिलाड़ी 15 साल के ऊपर जिसकी शूटिंग में कभी भी अटेंड करके जाता था उनके साथ, और या श्याम बेनेगल साहब की जुनून हो, या आपकी फिल्म आपकी जो 1857 का जिक्र करती है, वो भी एक अबाइडिंग थीम है जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस 1857। अगर कहीं आपको हिंदुस्तानी सिनेमा में देखना है तो आपको अवध आना ही पड़ता है बिल्कुल। तो आप अपनी सर्विस का जिक्र करें जानी साहब। Jagisar is actually set
25 years after 1857. And that's again another very watershed period. उस वक्त तक अंग्रेज काबिज हो चुके थे. अंग्रेज़ों के काबिज होने की कई माइलस्टोन्स हैं. बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ 1764, फिर ये 1800 में जब क्या नाम है सादत अली खान को लाया, ये जब सादत अली खान को लाया तो इन्होंने उनसे पूछा कि अगर मैं आपको अवध का नवाब बना दूँ तो आप क्या करेंगे हमारे लिए? तो इसे आधा अवध दे दूँगा. तो आधा अवध तो पहले ही उन्होंने ले लिया इन 1800 आफ्टर असदौला. उसके बाद ये जो 1857 का पूरा एक पस मंज़र रहा है, उसमें काफ़ी कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डेवलपमेंट रहा है वो, और उसके बाद जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके अपना एक असर छोड़ा यहाँ पर 1857 में. तो आपको मालूम है पूरा 1764 में कि कितना इंडियन बिजनेस कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो अपने ही लोग जो थे वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं. तो 1857 में जब ये होता है तो मुझे आपने जैसा कहा कई खित्तों में और कई तरह के ख़ासतौर से आपको औरतें मिलेंगी जिन्होंने हथियार उठाए. बेगम, हजरत महल, झरकिया बाई, झरकारी बाई, रानी झांसी, उसके बाद ये अजीज़न बाई, और भी मतलब बुंदेलखंड की औरतें काफ़ी थी. तो बहरहाल इट वॉज अ वेरी ह्यूज uprising, and after that how the British take over and they try to introduce their own culture, and how still the undercurrents of revolt are there. तो 1875 में जब वो उन्होंने पहला दरबार किया था तो उस वक्त वो साबित करना चाह रहे थे कि हम लोग हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और सब लोग बहुत खुश हैं. तो उन्होंने एक बच्चे को पाला था जिसको मैंने एक किरदार बनाया. ही इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी पीपल आई नो. 1857 में उसके वालिदैन शहीद हुए थे और उसको बिल्कुल अंग्रेज़ बना के लाए, और उसको किस तरीके से दे गोइंग टू यूज हिम एज अ टेस्टिमनी फॉर ब्रिटिश रूल. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पीरियड. उसके बाद जिस तरीके से उनके एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, वो इंडिगो फार्मिंग और ये सब चीज़ें हुई हैं, तो किस कदर शिद्दत से फैमिन हुए हैं हिंदुस्तान में, वो भी काबिल मतलब बयान है. तो दिस फिल्म दैट आई मेड वाज बेस्ड ऑन दैट, एंड आई यूज्ड अगेन वाजिद अली शाह एज अ काइंड ऑफ अ लूमिंग influence, because he was probably 1875 में वो शायद हयात थे. He died in 1887 or something like that. So he was there, and you could imagine how a place like Awadh would be feeling through his poetry what was happening before them. तो उसमें मैंने गज़लें जो इस्तेमाल की थी वाजिद अली शाह की थी, और मौसीकी हमने और शफ़क़त अली खान हम लोगों ने मिल के की थी. एंड इट हैड अ लॉट ऑफ फ्लेवर ऑफ अवध विच आई थिंक नीड्स टू बी टेकन फॉरवर्ड इन मैनी वेज. सो दैट्स the crux and the pain of that period, which I think slowly develops into the struggle for freedom. Why I clubbed it? I know that it was a little later than 1857. Why I clubbed it with the other two films is that is the same kind of a spirit. Your hero ultimately turned revolutionaries. So they are also, and especially the train sequence was very well done. I still remember that attack on the train, and that was there in the film by the Indian revolutionary in the train which is carrying the
द सिपॉयज ऑफ द ब्रिटिश एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली, और जो आपने मुझे बात कही है वो जब मैंने फिल्म देखी थी तब भी और अब भी, कि एक लड़का जिसको अंग्रेज बिल्कुल अपनी तरह से पाल पोस के बड़ा प्रभाव करते हैं, सोचते कि चलो अब तो हमने इसका डीएनए बदल दिया, तो वो डीएनए उसका बदलता नहीं है और अल्टीमेटली वही होता है जो होना चाहिए। और मुझे राजा दलीप सिंह की बहुत याद आ रही थी, जो पंजाब के आखिरी जो राजा थे जिनको अंग्रेजों ने पंजाब में रहना ही नहीं दिया, उनको यहीं फतेहपुर ले आए थे, यहाँ ट्रीटमेंट किया, यहाँ वो क्रिश्चियन बन गए या बनाया गया जो भी हुआ, और फिर लंदन चले गए। लंदन क्वीन विक्टोरिया के साथ रहते थे। एल्बर्ट के बहुत अच्छे दोस्त थे वो, प्रिंस एल्बर्ट के, जो बाद में किंग बनेंगे अपने ज़माने में। उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो दलीप सिंह रेवोल्यूशनरी रहा और रेवोल्यूशनरी ही थॉट लेके इतना कि उनको लंदन में रहना उनका दुखर हो गया और उनको जाके फ्रांस में मरना पड़ा। हिंदुस्तान में जब आए तो उनको पंजाब जाने की इजाज़त मिली। तो कुछ उसी तरह के मुझे तब भी जब मैंने देखी थी तो उसके केडेंसेस मुझे तब भी याद आए। अंग्रेज़ों ने पूरा एक जो जिसे द राज, द पीरियड ऑफ द राज, उन्होंने एक तरीके का एक जो कल्चर अपना इंजेक्ट किया है, एंड दैट कल्चर वाज रियली अ वेरी पावरफुल political culture. At the same time, it had a lot of interesting design dimensions, creating products which were irresistible for the feudal mind, you know. इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बनाई जो यहाँ पर पूरा जो एक ज्वेलरी का एक ट्रेडिशन शुरू किया, फिर आर्ट डेको आया, फिर these automobiles came, and India became a huge market for them, you know. And at the same time, our own craft started fading and dying, and हम लोगों का जो GDP था वो गिरता रहा, और किसी को मुझे लगता है अंदाज़ा भी नहीं था कि GDP क्या चीज़ होती है। जो मुगल्स के टाइम पे 1/3 of the world trade was done from India. 1/3 of the world GDP belonged to India. And then it was how much reduced to 4% or something. Yes. जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं एक चीज़ और यहाँ पार करना चाहूँगा एक अपने फिल्म के लवर्स के लिए, कि मुझे मुजफ्फर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देती है जब अवध के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं हम लोग, कि शुरुआती दौर में सिनेमा हमारे यहाँ सिर्फ कोस्टल इंडिया में होता है। मुंबई से शुरू होता है पहला प्रदर्शन, मुंबई में फिल्में बनने लगती हैं, कलकत्ता में बनने लगती हैं, मद्रास में बनने लगती हैं। सेंट्रल इंडिया के लोगों का फिल्म से कुछ लेना देना नहीं, जो पोस्ट में नहीं रहते उनका फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं, ना फिल्म कोई ऐसी बड़ी चीज़ है जिसके लिए लोग भाग के पहुँच भी जाएं। 2-4 लोग जाते हैं। जिस दिन से सिनेमा बोलना शुरू करता है सन 31 में, और जिस दिन से पहली फिल्म बनती है आलम आरा विद पृथ्वीराज कपूर साहब इन साइड रोड, उस दिन से प्रॉब्लम क्या आती है फिल्म मेकर के सामने। जिस आदमी ने आलम आरा बनाई थी वो हिंदी नहीं बोलता था, या तो गुजराती बोलता था या फारसी बोलता था, फारसी। क्योंकि मैं जब तेहरान गया था तो वहाँ अभी भी आदिर्शर ईरानी का बनाया हुआ थिएटर खड़ा हुआ, जिस पारसी आदमी ने ये फिल्म बनाई थी पहले। तो आदिर्शर ईरानी फारसी में फिल्में बनाते थे पर्शियन मार्केट के लिए, और हिंदुस्तानी मार्केट के लिए उनको अब सवाल ये आया कि किस ज़बान में बनाएं। तो बड़ा प्रैग्मेटिक गुजराती पारसी बिजनेसमैन था, उसने सोचा कि 40 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की हिंदी बोलते या समझते हैं, इसलिए हमें हिंदी नहीं कहना चाहिए, इसलिए मुझे हिंदुस्तानी में ही अपनी फिल्म बनानी चाहिए। तो बाकी कोई ऐसा प्रेम नहीं था हिंदी से, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी होने वाली है इसलिए मैं उसमें बनाऊंगा, ऐसा कोई प्रेम नहीं था। लेकिन इसलिए कि बिजनेस वाइज इट मेड मोर सेंस टू मेक इट इन हिंदुस्तानी, और उसने पहली फिल्म इसीलिए हिंदुस्तानी में बनाई। और जैसे ही हिंदुस्तानी में फिल्म बनना शुरू होती है, अवध का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। एंड आई मस्ट स्पार्क अ नेम विथ यू फ्रेंड्स, नेम इज भगवती प्रसाद मिश्रा। ये मिश्रा जी जो थे वो बनारस के पैदा हुए थे लेकिन अवध के रहने वाले थे, और इन्होंने आदिर्शर ईरानी के साथ मिलकर ये फिल्म भी लिखी और इसके डायलॉग लिखे थे। भगवती प्रसाद मिश्रा becomes a very important name as far as the influence of Awadhi and the language and everything is concerned. इसी तरह बनारस के एक सज्जन थे रमाशंकर चौधरी। रमाशंकर चौधरी साहब भी पहली दूसरी फिल्म से अपने टॉकीज के ज़माने में
इत्तेफाकन वो भी बनारस के पैदा पले बड़े थे, और इनसे तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे महबूब खान साहब कि उनको अपना उस्ताद मानते थे। और महबूब खान साहब की शुरुआत की जो फिल्में जो थी, उनकी शुरुआत की रोटी, और वो भी इनके साथ लिखी गई थी, और बाद में सन ऑफ इंडिया, रतन भी, ये सब इन्होंने इन फिल्मों में ये साहब चौधरी साहब जो थे शामिल थे। इसी तरह आगा हशर कश्मीरी, फिर बनारस का नाम कश्मीरी है, इन कश्मीर से उनके शॉल वाल बेचने वाले वाले साहब बनारस में चले गए थे, तो ये बच्चा फिर बनारस में पैदा हुआ था, आगा हशर कश्मीरी। These were the initial influences of अवध एंड अवधी एंड अवधी तहजीब एंड सारी बातें जिनका हम करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है मुझे थोड़ी बहुत स्पीच में दिखाई दी, क्योंकि बहुत से लोगों के आपने नाम भी सुने होंगे, यहूदी की लड़की का खास करके आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, और इनके डायलॉग भी और इनके लिरिक्स भी लिखते थे, इनके गाने भी बड़े बड़े मकबूल होते थे। और ऐसा कहा जाता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि आगा हशर कश्मीरी साहब जब फौत हुए, दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन फिल्म इंडस्ट्री वाज टोटली शट। Nobody worked for a couple of days to pay their respects to Agha Hashar Kashmiri, who was as big a name in the world of theatre as in cinema. आपने जो रेवोल्यूशनरीज की हमने बात की आपके साथ में, एक रेवोल्यूशनरी का नाम शायद गलती से आपसे भी छूट गया होगा, जबकि हमने औरतों की भी बात की थी, और वो था हमारी अपनी बेगम हजरत महल का। और अभी मैंने यहाँ पे लखनऊ में प्रोफेसर रुद्रांशु मुखर्जी, द ग्रेट हिस्टोरियन and the Chancellor of Ashoka University, was in town, and his basic D.Litt thesis for Oxford was on the Awadh Revolution, which he calls the People's Revolt. उनकी एक किताब बहुत अच्छी है इस बीच में, बेगम और रानी, हमारी अपनी बेगम हजरत महल पे और रानी पे। और उस किताब में जो बात करते हैं वो कि बेगम हजरत महल कितनी नेग्लेक्टेड रही है, जबकि रानी का सेलिब्रेशन इतना है कि टैगोर वॉज द फर्स्ट हिंदुस्तानी जिसने कि रानी झांसी की कहानी लिखी थी अपने ज़माने में, टैगोर बहुत पहले। उसके बाद में दूसरे इंडियन हिस्टोरियंस ने, क्योंकि तब तक अंग्रेज हिस्टोरियन उनको ज़्यादा उनकी तारीफें नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेज हिस्टोरियन अगर लिखते भी थे तो उनकी बुराइयाँ करते थे। लेकिन कैसे हमारी बेगम नेगलेक्ट होती चली गई। एक तो शुरू में वो पर्दे में रहती थी, पहले तो इसलिए कि वो परी खाने से थी, तो पहले तो वो अच्छी औरत नहीं थी। बाद में जब बेगम साहिबा बन गई वो, तो फिर वो उनको बेचारियों को काइंड ऑफ पर्दे में रहना पड़ता था। फिर उसके बाद में जब उनको थोक में तलाक दे दिया गया, फिर वो बेचारी परित्यक्ता औरत बन गई थी। बाद में जब उन्होंने रेवोल्यूशन भी लीड किया तो भी वो पर्दे में थी, उनको किसी ने देखा नहीं। और बाद में perhaps she did not meet with the death as gloriously as the रानी झांसी did। तो रानी झांसी के बारे में ज़रूर लिखा जाता बुंदेले हर बोनों से, लेकिन अवध में किसी ने नहीं लिखी इस तरह की बात। आपके दिमाग में है कभी कि रानी पे कुछ बनाया जाए, हमारी बेगम पे कुछ बनाया जाए? नहीं, मैंने बहुत इस पर काम किया, and I was wanting to make a film on बेगम हजरत महल, but I feel that see, making a film is a very big calling, and it also is based on the kind of responses you get from the market. So I feel that Begum Hazrat Mahal has to be part of this 1857 struggle, and she has to be a part of a collective leadership in which she's in the forefront. So I think a film on her, it could be a mini series where you involve a lot of women around her who took the inspiration from her and led the battle. But to me, that's in the same breath, I would say a seminal film on Wajid Ali Shah is much more called for, because today you can't fight, celebrate fights, you know. Today you have to celebrate peace, you have to celebrate handshakes, you have to celebrate love. तो उस हिसाब से मुझे लगता है वाजिद अली शाह is an arsenal of love, मतलब तोपखाना है मोहब्बत का वो। अगर उसको सिर्फ एक सही तरीके से आग लगाई जाए, और उससे क्या है, मैं बताऊँ, it's not easy to address love. उसके लिए बहुत ही evolved cerebral passion चाहिए होता है। फिल्म बनाना सिर्फ कहानी लिख दी और ये इकट्ठा कर लिया और ये कर दिया वो कर दिया और पहुंच गए सेट पे, उससे फिल्म नहीं बनती है। It's a chemistry you impart to the moving image
it's the writing you do with light. ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ करके समझा सकता हूँ, बयान करके नहीं समझा सकता हूँ। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं मतलब मेरे अंदर ही हैं, जो सामने आई नहीं है, और अगर मौका लगेगा तो सामने आएंगी तो उनका एक अलग डिमेंशन और एक अलग सेंसुअलिटी पैदा हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अब लोग नापते हैं कि भाई कितना कामयाब है आदमी, कितनी उसकी फिल्म चली, कितना वो नहीं चला। किसी के पास पैशन और इश्क नापने का आला नहीं है। क्या बात। तो अगर खासतौर से आर्ट में, because unless art is measured with that kind of a passion, you cannot, nobody can be a critique of art. तो कुछ नहीं होता तो मैं पेंटिंग करता हूँ, at least I try to bring that the deep nuances that I feel are visually important for the human psyche to bring people together. I think दो निगाहें जो हैं जब एक तस्वीर को देख के महसूस होती हैं तो उनमें एक असर पैदा होता है। तो वो असर पैदा करना थ्रू आर्ट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जिसमें बाज़ खामोश रहना बेहतर होता है। मुज़फ़्फ़र, मुझे लगता है कि जो एक नाम आपने शुरू में लिया था, जिनकी कंपनी में आप भी काम करते थे, जिनके साथ एक ही कंपनी में आप भी काम करते थे, सतीश ग्रे साहब, उनमें और आप में बहुत सारी मुझे समानताएं दिखाई देती हैं। बीइंग अ मैन ऑफ म्यूज़िक, बीइंग अ पेंटर, बीइंग अ पोएट, बीइंग अ फिल्म मेकर, बीइंग अ फिल्म राइटर, ये सारी चीज़ें जो हैं इन दोनों में इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत कम हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, जो एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियाँ, इतनी सारी स्किल्स, इतने सारे हुनर एक ही इंसान में। तो ये एक कमाल की बात है। और आपके एक चैप्टर का मैं नाम देखा था, ऐसे मैंने कन्फेस किया कि मैंने किताब पढ़ी नहीं, आज मैंने पहली बार देखी। उसमें एक चैप्टर का नाम था फ्रॉम कैसरबाग टू चौरंगी। मुझे लगता है कि वो तो आपने लिख दिया है, लेकिन अब फ्रॉम कैसरबाग टू मटिया बुर्ज भी करने की ज़रूरत है, जैसा आपने कहा। वो भी एक कहानी लखनऊ की है जो तो सामने आनी चाहिए। आई थिंक फ्रॉम कैसरबाग टू कैसरबाग ही ठीक है। इतना ट्रैफिक है, यहाँ से निकलना और वापस आना घर। इसीलिए अब नाव वाला रास्ता जिससे गए थे भाई दिलीशा, वो भी खुल गया है और खुल रहा है। इसी से शायद ज़्यादा वो इसे कुछ कम ट्रैफिक। देखिए, हर आदमी के पर कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसको जिंदा करने के लिए उसको जिंदा रखना पड़ता है अपने दिल में, और काफ़ी दिन तक जिंदा रखना पड़ता है जिससे पहले कि वो दुनिया के सामने पेश हो, और फिर बाद अब नहीं भी होता है। तो दयार फन में जहाँ मंजिलें भी फानी हो, तमाम उम्र भटकने का हौसला रखिए। बहुत दोस्तों, एक और नाम मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा। हमने जब मिस कज्जन की बात की थी, तो मिस कज्जन की 32 की मैंने बात की, उसकी जो लखनऊ की इंदर सभा पे उनकी जो फिल्म आई थी, उसी के 2 साल बाद लखनऊ की ही, अवध की ही एक और लड़की सिनेमा में आई। वो फिल्म जिन लोगों ने कल यहाँ देखी होगी, जिक्र उस परिवर्ष का, बेगम अख्तर साहिबा, वो भी फिल्मों में आ गई थी, और उन्होंने भी 2-3 फिल्मों में एक्टिंग भी की और गाती तो थी ही। उनकी आवाज़ तो ऑलरेडी स्टार थी ही आवाज़ की। वो अगर कल फिल्में देखी हैं किसी ने, तो जिक्र उस परिवर्ष का बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म है, उनकी लाइफ में ज़रूर देखिएगा। उसको अकेडमी उसको हमारा नेशनल अवार्ड भी मिला है इंडिया का। बेगम अख्तर साहिबा ने भी आकर के, और न सिर्फ बेगम अख्तर साहिबा बल्कि जिस तरह से अवध की मौसीकी ने जो प्रभाव डाला, और अवध के डांस ने जिस तरह का प्रभाव डाला, वो तो शुरू करके रोशन आरा जी से और बहुत से लोगों से, उसके पहले से। रोशन आरा जी के मैं नाम इसलिए लिया कि जलसा करने के वेरी वेरी आइकॉनिक फिल्म जिसमें कि रे साहब ले गए और उनसे उन्होंने अवध
का ही कथक करवाया, जबकि रोशन लाला कई चीज़ों में वो ट्रेंड थी, कई जगह का सीखा था उन्होंने, लेकिन उसे अवध का ही काम करवाया उन्होंने। श्रीनगर आपको याद हो ब्लैक एंड वाइट जलसा करना, तो ये अवध का डांस के थ्रू भी एक ज़बरदस्त एक असर पड़ता है। और एक अवध का असर पड़ता है अवध की ज़बान के ज़रिए, हालांकि ज़्यादातर अवध की ज़बान बेचारे नौकरों को दी जाती थी, लेकिन कुछ लोगों ने, महबूब खान ने अपनी फिल्मों में, अगेन चौधरी साहब का नाम लेना पड़ेगा, उनके ज़रिए उन्होंने अवधी में अपनी कुछ फिल्में बनाई और अवध का असर डाला। और दिलीप कुमार साहब ने जिस तरह से उसको कैरी किया, वो एक अच्छे मूड पे आप लोगों को ले चलने के लिए, इस गंभीर बातचीत के बीच में अगर हम चाहें तो हम एक दिलीप कुमार की क्लिप है हमारे पास, देखिएगा, नयन लड़ गई हैं, तो जरा वो देखते हैं। रूप को मन में बसे बात बुरा का हुई है, रूप को मन में बसे बात बुरा का हुई है, तो उसे प्रीत लगई बा, तो उसे प्रीत लगई बा, तो बुरा का हुई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहा कवई करी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहा कवई करी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है, तो मनवा माँ कसक होई करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई करी। नैन लड़ गई है, तो मनवा माँ कसक होई करी। So these are the iconic portrayals of the language and of the attitude and the body language. ये भी कह रहे थे मुज़फ़्फ़र साहब की बॉडी लैंग्वेज पर ज़रा गौर कीजिए कि कितनी खूबसूरत है दिलीप साहब की। और दोस्तों मुझे लगता है कि जब तक सनत ख़ता जैसी कोशिशें बरकरार रहेंगी, जो अवध को, लखनऊ को ज़िंदा रखने के लिए साल दर साल लगी हुई हैं, और जब तक इसको महिंद्रा जैसे परिवार की, और सीनियर मिसेस महिंद्रा कम्स फ्रॉम लखनऊ, एज यू नो, जब तक उनका सपोर्ट मिलता रहेगा, उनका पहले हमें हॉर्स पावर मिलता था, आजकल उनकी इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों को मिलने लगी है, जब से उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दे आर द लीडर्स नाउ, तो जिस तरह से ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा, और जब तक हमारे पास मुज़फ़्फ़र साहब जैसे लोग रहेंगे, we have dedicated themselves to Awadh। एक बार इन्होंने भटकने की कोशिश की थी, कश्मीर जाने की इन्होंने कोशिश की, तो उसमें अनफिनिश पोएम है, उसका जिक्र है, इसे कभी आप देखिएगा, उसका जिक्र है अनफिनिश पोएम का, कश्मीर वाली जोनी का। वो तो अनफॉर्चुनेटली हो गया कि वो नहीं जा पाए, यूपी के आदमी कश्मीर का सपना पूरा नहीं हो पाया, शायद इसीलिए वो महिंद्रा के साथ में, जब मैं महिंद्रा कह रहा था, उन्होंने कहा क्या नरेंद्रा, उन्होंने कहा इसलिए नरेंद्रा साहब ने ऐसा किया है कि कश्मीर को आजकल एक यूपी के आदमी के हाथ में सौंप दिया है, जिनका नाम सिन्हा है, तो यूपी वाले ही अभी समय कश्मीर चला रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं माइक देना चाहूँगा मुज़फ़्फ़र साहब को, कि क्योंकि 4 बज रहे हैं और हम लोग कम से कम समय का ख्याल रखें, लेकिन मुज़फ़्फ़र साहब के हाथों में मुझे लगता है कि जब तक मुज़फ़्फ़र साहब लिख रहे हैं, जब तक मुज़फ़्फ़र साहब गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, धुनें बना रहे हैं, जब तक नचवा रहे हैं, कम से कम नाच नहीं रहे लेकिन दिल्ली में नचवाते भी हैं, लखनऊ में भी नचवाते हैं, दिलकुशा में भी नचवाते हैं, कभी कभी मैंने सुना है कि यहाँ चतर मंजिल में भी नचवा देते हैं। और जब तक फिल्में बना रहे हैं, तब तक अपने अवध की अक्कासी सिनेमा में होती रहेगी, बची रहेगी, जिंदा रहेगी। मुझे पसंद
नहीं, आपने जो कश्मीर की बात की वो भी एक अवध का तेवर था, और अवध का ख़ास तेवर ये है कि आप दूसरे माशरे की कदर करें। तो कश्मीर की कदर करना और वहाँ उस माशरे को एहतराम के साथ देखना, वो भी एक अवध की अदा है, जिससे मैं चाहता हूँ कि हर अवध वाला जुड़ा रहे। क्या बात, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग डॉट 4 बजे अपना सेशन ख़त्म कर रहे हैं। जैसे 3 बजे हमने डॉट शुरू कर दिया था सेशन, और बहुत बहुत शुक्रिया सनतदा का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। अगर किसी के कोई सवाल हो 2-4 हम लोग, कैन वी टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस प्लीज? सवाल नहीं है तो बस एक याद दिलाना है, नौशाद साहब का नाम रह गया इस पूरी डिस्कशन। जी, असल में मैं जो था पूरा पर्चा एक लिख के लाया था, बस याद नहीं, तो उसमें नौशाद साहब का भी नाम है और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और नौशाद साहब न सिर्फ नौशाद साहब एक और आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने, जिसका नाम है सहगल। तो केएल सहगल वो यहाँ के नहीं हैं, वो पंजाब के हैं, कलकत्ते में हैं, लेकिन वो भी बजरिया नौशाद बरास्ता नौशाद पहुँचते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं जिनका अवध इन्फ्लुएंस से जो चीज़ें पैदा होती हैं, बहुत सारे नाम रह गए। बल्कि जब मेरे नोट्स देखे तो मुज़फ़्फ़र साहब बोले कि भैया इतने सारे, तुम इतना बड़ा खर्रा लेके आए हो। मैंने कहा देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को पढ़ा, हमारे तो एग्ज़ाम ही जाते थे तो पर्ची लेके आए, तो हम तो बिना खर्रे के बिना पर्ची के कहीं नहीं चलते एग्ज़ाम लेके। Any more questions? आपको जितना म्यूजिक का समझ है बहुत कम लोगों में है एज ए फिल्म डायरेक्टर, एंड दैट्स आल्सो वन सिमिलरिटी विद सत्यजीत रे। तो मैं चाहता था कि अगर आप अपना म्यूजिक का कोई तरन्नुम में 2 लाइन सुनाएं, आपसे शर्मा जी, वंडरफुल सिविल सर्वेंट जो कहलाते हैं, लेकिन अफसर होते हैं, तो वो हमारे शहर के, बहुत इन्होंने लिखा है कि लखनऊ डायरीज किताबों को पढ़िएगा आप। सवाल आपसे था कि आप म्यूज़िक में जो होल्ड है वो भी सत्यजीत रे है, इसका मैंने जिक्र किया था, कुछ आपसे सुनना चाहिए। देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे के अंदर उनकी रूह में उतर के उनसे निकाल लेता हूँ चीज़। मैं सिर्फ रूह के अंदर उतरने का काम करता हूँ। मेरा काम न नाचना है न गाना है, लेकिन रूहों तक पहुँचने की एक तलब है, जो आई हैव बीन ब्लेस्ड विद मेनी combinations and relationships as far as singers are concerned. Asha ji one, Abida Parveen another, a lot of people who've come to me and I've been able to put my soul into their voice. बल्कि आशा जी ने बहुत अच्छा, मुझे जब नेशनल अवार्ड उनको मिला था, I wrote a very beautiful, touching tribute to me कि आप ना होते तो ये सब में मुझे नहीं मिलता। तो बस मैं लोगों की रूह तक उतर के उनसे काम ले लेता हूँ। This is the कुदरत that has blessed me and I don't think I can do anything myself. ना मैं गा पाता हूँ, ना नाच पाता हूँ, ना शायरी कर पाता हूँ, ना पढ़ पाता हूँ, ना कुछ। बस it's something which I'm just a painter, so I can paint sound, I can paint voices, I can paint dance, so that's how I can identify myself and express myself. So I'm sorry to disappoint you, लेकिन आप अगर फोन लेंगे ना, फोन को जो भी गाना सुनना चाहेंगे दबाएंगे, सुन आ जाएगा। क्या बात, हाँ, उसकी कोई डिग्री नहीं होती। जब सत्यजीत रे की बात की तो उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है? मैं कलकत्ते से तो मैंने सारी देखी है। नहीं, उनकी तो सभी फिल्में देखी हैं।
Pathar Panchali. I mean, he was a obsessed man, you know. उनकी आंखों से पता चल जाता था कि वो क्या सोच रहे हैं. हम लोग तो उनकी धूल नहीं पा सकते. So there is a huge variety of his films. तो आप उनकी कौन सी genre आपको actually Pathar Panchali is? I liked his way of. See, he's got two different dimensions. One is how he addresses the aristocracy and how he addresses the village. So उनका जो एक how he plays with sound and light and textures. It's something. I mean, I can't. उसके लिए पूरा एक मंच चाहिए. बल्कि if I may add a line to it, आजकल बहुत प्राउडली एक हमारे यहाँ का प्रोडक्शन हाउस जो है वो लिख रहा है स्पाई वर्क्स. स्पाई अलग वर्क्स अलग. स्पाई वर्क्स ऑफ फलाना स्टूडियोज. तो सत्येंद्र का तो अपना स्पाई वर्क्स बहुत पहले होकर निकल गया फिल्म में. उनका भी एक स्पाई वर्क्स था जिसको इतना सेलिब्रेट करके जाने की जरूरत है. इतना स्पाई वर्क्स तो किसी और ने बनाया नहीं. Hi, good evening. Thank you so much for a wonderful session and Atul sir for moderating it so beautifully. Muzaffar sir, there was a time when we used to have a lot of epics, and you know, a lot of filmmakers like you or Satyajit Ray and others could easily make epics. But nowadays we are not seeing any more epics, you know, which talk about culture, which takes us to these wonderful, you know, moments from history. And if you were to make a film like Umrao Jaan today, what cost do you think would it, you know, incur? And would you be able to make it, you know, given the production system and studio system? Yeah, why not? Of course, we can do wonders, but people don't trust us. Even the OTT channels don't trust us. They don't trust you with anything which requires good taste. You're not formula based. You need formula based for that. So more of spy verses and, you know, comic book fans and stuff, but no real cinema, unfortunately. See, the point is that लोग डरते हैं कि कहीं पैसे डूब ना जाए. You know, पैसे के डूबने का खतरा जो है वो दिल के डूबने से ज़्यादा है. Thank you so much. Sir, आप आजकल फिल्म क्यों नहीं बना रहे? Why are you not continuing making films? मुझे भी दिल के डूबने का खतरा. किसी दूसरे का पैसा डूबेगा. देखिए, सबसे अच्छी चीज दुनिया में एक ही है, मजाक. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ. मैं मंजरी सिन्हा आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उमराव जान में रेखा को बचपन से लेकर के और तक का जो मामला है वो भैरव से लेकर के भैरवी तक जो जिस तरह से दिल के अलग अलग प्रकार राग बढ़ते जाते हैं और उसकी उम्र बढ़ती जाती है, ये बात आपकी सोची हुई थी या गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की? देखिए, ऐसा है, गुलाम मुस्तफ़ा खान एक बहुत बड़े खजाना है, लेकिन अब खजाना तो बैंक होता है ना. चेक तो आपको लिखना पड़ती है कि आप कितना अमाउंट उसमें से चाहते हैं. तो ज़ाहिर है, यू नो, there was a trajectory, everything was structured, everything was defined, and within that definition, to be able to cash that much amount and use it is an art in itself, and it's an art for him, it's an art for me also. मेरा सवाल ये है कि आइडिया आपका था? आइडिया तो देखिए, आइडिया जो है वो हमेशा दोनों हाथ से ताली बजती है. मेरा ना आइडिया होता तो उनका भी ना आइडिया होता. अगर वो आइडिया तक इस्तेमाल किया है आपने. अगर वो आइडिया तक पहुंच ना पाते तो मेरा भी आइडिया लौट के सलाम करके आ जाता वापस. Any chances of reviving Zuni now that we have UP in Kashmir? I think Rumi is a huge chemistry, something that is raring to become real, but किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको टच करें. But it's something that I know I can create magic because I've got a whole
वर्ल्ड अराउंड मी, जैसे मैंने कहा, मैंने इतनी रूहों को इकट्ठा करके रखा है उसके लिए कि अगर वो सब रूहों को मैं जोड़ दूँ उसके साथ तो इट कैन बी मैजिक, यू नो. माय सिनेमेटोग्राफर वाज विटोरियो स्टोरारो, who did the last emperor. उसके साथ मैंने पूरा टर्की जाके देखा. Zuni. Oh, Zuni. Zuni. Yeah. I actually thought I said Zuni, but I अब ज़ूनी को इन्होंने कर्स कर दिया कि आप लखनऊ के कहाँ चले गए भटक के. नहीं, I think there's a chance. My son is trying to revive it like a documentary. He's saying, you know, I've got 70,000 feet of shot footage, and I think it was definitely a magic, you know, which was linked with the nature of Kashmir, and something linking with the 4 seasons of Kashmir and the range of human emotions. It was something beyond. मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये हो भी सकता था उस वक्त, और मुझे ये भी तकलीफ होती कि अब ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है. देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कि सिनेमा का आदमी हूँ, बट आई एम ए पॉलिटिकल एनिमल. तो जब यूपी कश्मीर में पहुंचा तो इतने लोग कभी नहीं सड़कों पे दिखाई दिए थे जितने कि अभी कि राहुल जी जब पहुंचे कश्मीर, तो जितने लोग सड़कों पे दिखाई दिए और जितने हिंदुस्तान के झंडे सड़कों पे दिखाई दिए, वो अपने आप में एक बहुत ही हार्टनिंग स्टोरी है सबके लिए, और कश्मीर के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए. वो भी, हाँ ठीक है, ये भी बात सही है. Thank you, sir, for attending today, and we have a token of gratitude from the team that we would like to present to both of you. टोकन तो मिल रहा है नीचे. Sabreen for Sir Muzaffar Ali and Kinzar for